students, हमने welcome again to our upcoming session of oscillation. So as I told you earlier, since oscillation is divided into a three category, in which the first was linear SHM, the second is angular SHM, and the third is damped SHM. So out of these three, the first SHM, which is linear SHM, that this portion we had covered in the previous session. Today we will going to start with a new session, that is angular SHM. So today we will going to start with the angular SHM. So let's start with this second type of SHM, simple harmonic motion, which is angular SHM. So the today's topic is angular SHM. Angular SHM. Before I should start with that, let us have a definition for this angular SHM. As in linear SHM, we have studied that the force is directly proportional to displacement, but the direction is opposite. So in angular, instead of force, will we be having a torque. So in angular SHM, we should say the definition that it is a oscillatory motion in which magnitude of restoring torque is directly proportional to, okay, angular displacement. Is directly proportional to angular displacement. So let us understand this how. ये कैसे है? तो जस्ट इमेजिन कीजिए कि अगर जस्ट एक इमेजिनेशन कर लेते हैं कि आप जो हैं एक कॉइन जो है वी हैव इन अ कॉइन, एंड so here we have a rigid support. So let us understand this is a rigid support, and this support is attached with a string. So let us understand this is a string whose lower end is attached with a one circular disc. So let us understand we have a one circular disc. So here it is your disc, okay, this is a circular disc, ठीक है, and assume कर दे center is O, and its center is O, and here let us assume OA is its initial position, ठीक है. Now we are deflecting it once, हम एक बार इसको deflect करते हैं in anti clockwise direction. Now this OA जो है वो पहुंचता है आपके न्यू पोजीशन पे, और वो पोजीशन है OA डैश पोजीशन, और एंगल जो स्वीप करता है ये एंगल है थीटा. सो ऑन दैट टाइम, अब जब इतना एंगल ये मूव किया है तो अपोजिट डायरेक्शन में एक टॉर्क प्रोड्यूस होगा, और ये टॉर्क जो है, दिस टॉर्क विच इज अ रीस्टोरिंग टॉर्क, रिमेंबर, restoring torque is directly proportional to displacement. But look at the direction.
The theta is in clockwise, sorry, theta is in clockwise. थीटा जो है आपका क्लॉकवाइज है, थीटा को अगर देखोगे आप तो क्लॉकवाइज है, लेकिन टॉर्क जो है आपका वो एंटी क्लॉकवाइज है। इससे तो टॉर्क मतलब कौन सा टॉर्क की बात कर रहा हूँ, मतलब रिस्टोरिंग टॉर्क की बात कर रहा हूँ, वो एंटी क्लॉकवाइज है। तो इससे तो एक चीज़ कन्फर्म है कि द रिस्टोरिंग टॉर्क इज माइनस ऑफ थीटा, opposite direction. So we can say that torque restoring is equals to minus c into theta, where we should say that c is constant of proportionality, constant of proportionality, and the value of c is actually unit for that will be restoring torque. It is also called as a restoring torque per unit angular displacement. Remember, per unit angular displacement, remember this. So it is a restoring torque per unit angular displacement. So this c also called as by this name or sometimes by this name. So this is the definition of your angular SHM. Remember, angular SHM. Now let us come to the differential equation of, this question comes in exam, differential equation of angular SHM. डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा एंगुलर एसएचएम का, वो एग्जाम्स में आता है, तो हम लोग इसे भी एक बार स्टडी कर लेते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी इसकी। तो अभी आपने देखा कि इन एंगुलर एसएचएम, इन एंगुलर एसएचएम एक्चुअली आपने देखा कि टॉर्क रिस्टोरिंग टॉर्क is directly proportional to displacement, but डायरेक्शन अपोजिट होती है, माइनस की तरफ होती है। तो यहाँ से एक चीज़ तो कंफर्म है कि टॉर्क इज इक्वल्स टू माइनस सी थीटा, ये आएगा इक्वेशन 1। तो आपको भी पता है वेयर सी इज कांस्टेंट, वही ऊपर लिखा था कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी जो हमने अभी अर्लियर डिस्कस किया है। Now, but as we know that in mechanics we have studied that torque is equals to I alpha। तो अगर इनकी कंपैरिजन करें यहाँ पे, बाय इक्वेशन 1 एंड 2 अगर हम कंपैरिजन करें, सो वी विल गेट I alpha is equals to minus c theta। रिमेंबर, तो यहाँ से अल्फा विल बी इक्वल्स टू माइनस सी अपॉन आई मल्टीप्लाई बाय थीटा। रिमेंबर, ओके, ये होगा वेयर वी मस्ट से द अल्फा इज एक्चुअली एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन। रिमेंबर, जहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू जो होती है, अगर हम डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में लिखें तो डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर होगा। तो यहाँ से हमें एक नया फॉर्मूला मिला, डी स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय डी टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस सी अपॉन आई इंटू थीटा। रिमेंबर, so when the negative sign, when I shift this to the left hand side, will become positive। तो डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस सी अपॉन आई विल बी योर थीटा। बट यहाँ से एक चीज़ और पता चल गई, ऊपर वाले इक्वेशंस में जहाँ लिखा है वेयर इट इज़ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वाला टॉपिक है, यहाँ
So we have also come to know that this here the torque is actually, sorry, torque I'm saying, the alpha is also directly proportional to displacement but direction is opposite. तो यहाँ से हमारे डेफिनेशन में एक और ऐड हो जाता है. अब डेफिनेशन की बात करें, जो ऊपर हमने डेफिनेशन लिखा है, इस डेफिनेशन में लिखा है इट इज ऑसिलेटरी मोशन इन मैग्नीट्यूड ऑफ रिस्टोरिंग टॉर्क. जो लिखा है टॉर्क के आगे हम ऐड कर सकते हैं और योर एंगुलर एक्सेलरेशन, ये भी आप ऐड कर सकते हैं. ऐड करना ही चाहिए, एक्चुअली कर सकते नहीं, करना ही चाहिए. इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जिसे हम अल्फा कहते हैं, एंड इट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा. ओके, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा ऑफ अ बॉडी. ओके, कितना ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मूव करता है इस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन. आप देख रहे हैं ना, डिस्प्लेसमेंट आपकी हो रही है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, लेकिन रिस्टोरिंग टॉर्क डायग्राम में बताया रिस्टोरिंग टॉर्क जो है वो एंटी क्लॉकवाइज में है. ये एक डिस्क है, रिमेंबर. ओके, एंड ये है स्ट्रिंग. सो ये है स्ट्रिंग, और जो भी टॉर्क प्रोड्यूस होता है वो स्ट्रिंग में होता है. रिस्टोरिंग टॉर्क जो प्रोड्यूस होता है वो स्ट्रिंग के अंदर प्रोड्यूस होता है. ऐसे ही नहीं डिस्क घूमेगा, स्ट्रिंग से अटैच्ड है इसलिए स्ट्रिंग उल्टे डायरेक्शन में वापस घूमने लगता है. तो ये हुआ, ये निगेटिव हमने लेफ्ट में शिफ्ट किया, एंड देन वी कैन से दैट this will be equals to 0 is required differential equation of angular SHM. Remember this, angular SHM का ये differential equation हुआ. Okay, so till here the question comes for 2 marks. Define angular SHM and write its differential equation. ये मैंने आपको बताया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सो ये तो था हमारा इंट्रोडक्शन एंगुलर SHM से रिलेटेड, और वो इंट्रोडक्शंस में मैंने आपको बताया कि कैसे हम लोग फाइंड करते हैं. अब आप चलते हैं एक प्रूफ, एक प्रैक्टिकल करते हैं कि यहाँ पे SHM होता है तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा. तो अगला क्वेश्चन जो है वो ये है कि शो दैट magnet kept in a uniform magnetic field performs angular SHM. इसके बाद पूछेगा hence find its time period. हम उसी मैग्नेट का टाइम पीरियड भी फाइंड आउट करेंगे कि इसकी टाइम पीरियड क्या होगी. ओके, तो ये चीज़ें हमें फाइंड करनी है. तो हम क्या करेंगे ना, हम एक प्रैक्टिकल करते हैं. ये मैं एज्यूम करता हूँ पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर रहा हूँ. पैरेलल लाइंस ड्रॉ करने का मतलब मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये सारी फील्ड यूनिफॉर्म है. यूनिफॉर्म का मतलब होता है मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड विल बी सेम विद इन द एरिया, विद इन द रीजन. जितना रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है वहाँ पे मैग्नीट्यूड, उसकी स्ट्रेंथ जो है वो सेम होगी, याद रखिएगा. तो ये हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड B. ओके, एंड नाउ वी हैव केप्ट हमने एक स्लैंट डायरेक्शन में
हमने एक स्लैंट डायरेक्शन में एक मैग्नेट रखा है। सो एक मैग्नेट रखा है स्लैंट डायरेक्शन में, मैं हम दूसरा यूज़ करते हैं ये। तो ये देखिए ये हुआ हमारा मैग्नेट, एंड मैग्नेट का जो एक्सिस है ये एज्यूम कर लेते हैं मैग्नेट है। इट्स नॉट प्रॉपर बट लेट अस एज्यूम, ट्राइंग इट। ठीक है, एक बार और ट्राई कर लेते हैं। ये है हमारा मैग्नेट। सो यू कैन, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि दिस मैग्नेट हैज बीन केप्ट इन ए मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा है, और आपको भी पता है कि डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड विल बी फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ओके, नॉर्थ से साउथ की तरफ होता है। लेट अस assume this magnet is having this as a north pole and this as a south pole. Now as a result of that, नॉर्थ पोल पे फोर्स एक्ट होगा साउथ की तरफ इस तरीके से, और ये फोर्स एफ होगा। ओके, सो एज्यूम कर लेते हैं कि लेट बी बी द मैग्नेटिक इंडक्शन और स्ट्रेंथ ऑफ magnetic induction of uniform magnetic field okay, in which a magnet, we have kept a magnet, एक छोटा सा मैग्नेट हम रख रहे हैं, a magnet which has a name Sn, okay, kept at angle theta, okay, at angle theta, remember theta angle पे रखें, of magnetic डाइपोल मोमेंट। मैं एज्यूम करता हूँ कि इसकी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट म्यू है, क्योंकि हम लोग फिजिक्स में वैसे देखा जाए तो उसको कैपिटल एम एज्यूम करते हैं, बट यहाँ पे म्यू है। कैपिटल एम दिया, क्यों एज्यूम करना पड़ रहा है वो इसका रीज़न यहाँ पे है, मास ऑफ अ मैग्नेट। उस मैग्नेट का मास जो है ना वो कैपिटल एम एज्यूम कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, नाउ अब होगा क्या, नॉर्थ के ऊपर तो फोर्स एक्ट हो रहा है, साउथ के ऊपर फोर्स जो एक्ट होगा वो लेफ्ट की तरफ होगा, और उसका डायरेक्शन, एक्चुअली द फोर्स जो एक्ट होती है उसका फॉर्मूला होता है एम बी। साउथ पोल का पोल स्ट्रेंथ माइनस होता है तो माइनस एम बी, सो बट इंस्टेड ऑफ एफ माइनस एम बी वी विल राइट माइनस म्यू बी, बिकॉज सॉरी 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 सो हम ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं जाते, माइनस एम इंटू बी करेंगे, पोल स्ट्रेंथ को स्मॉल एम एज्यूम कर रहे हैं, तो यहाँ पे लेट अस एज्यूम कि पोल स्ट्रेंथ इनकी स्मॉल एम ही है, और यहाँ पे भी प्लस स्मॉल एम इंटू बी एज्यूम करेंगे, और ये है एंगल जो है। अब यहाँ पे एंगल डिस्क्राइब करेंगे तो हम लोग मैग्नेट का एक्सिस ड्रॉ करेंगे, द एक्सिस ऑफ द मैग्नेट। एक्सिस ऑफ द मैग्नेट इज नथिंग बट अ लाइन विच कनेक्ट्स नॉर्थ एंड साउथ पोल। सो नॉर्थ एंड साउथ को आपस में कनेक्ट करने वाली जो लाइन होगी ये एक्चुअली एक्सिस होगी। So this is called as the axis of the magnet. So let us draw the axis. So, uh, so let us draw the axis.
So let's see this question where the magnet is kept in a uniform magnetic field. If इसको read करें, so magnet जो है वो kept in. So here the magnet is kept in a uniform magnetic field, okay, with the axis parallel to. Now here SN magnet has moved, so is deflected at angle theta of magnetic dipole moment mu. ओके, थीटा एंगल से इसको डिफ्लेक्ट किया. उसकी आप देखिए यहाँ पे ये था इसका प्रीवियस एक्सिस एस डैश एन डैश, क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा है. सो थीटा इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ओके, remember this. So theta is in anti-clockwise direction, as you can see here. This is your theta जो anti-clockwise direction में है. So इस वजह से, और कैपिटल एम इज मास ऑफ द मैग्नेट मैंने एज्यूम किया. अब यहाँ पे एक रीस्टोरिंग टॉर्क प्रोड्यूस होगा. रीस्टोरिंग टॉर्क, क्योंकि आपने देखा यहाँ पे दो फोर्स प्रोड्यूस हो रही है. एक फोर्स जो प्रोड्यूस हो रही है वो है एन पोल पे, और एक फोर्स प्रोड्यूस हो रही है साउथ पोल पे. बोथ दीज फोर्सेस F1 एंड F2 आर अपोजिट इन डायरेक्शन. दे आर एक्टिंग ऑन ए टू डिफरेंट एंड्स, और ये जब अप्लाई होंगे इस और इस डायरेक्शन में, एज ए रिजल्ट ऑफ दैट दे विल क्रिएट ये एक टॉर्क क्रिएट करेंगे जो कि मैग्नेट को वापस से एस डैश एन डैश पोजीशन पे लाने की कोशिश करेंगे. रिमेंबर दिस. ओके, सो ये वापस से इसी डायरेक्शन में लाने की कोशिश करेंगे. तो ये है टॉर्क का डायरेक्शन, एंड यू कैन सी हियर द टॉर्क जो प्रोड्यूस हो रहा है दोनों एंड पे, जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है विच इज क्लॉकवाइज. लेकिन आप एक चीज़ देखिए कि जो आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो था, थीटा एंगल जो बना है, वो एक्चुअली एंटी क्लॉकवाइज है. रिमेंबर दिस, इट इज एंटी क्लॉकवाइज. ये एंटी क्लॉकवाइज बना है. सो यहाँ पे थर्ड पॉइंट जो होगा कि रिस्टोरिंग टॉर्क एक्टिंग ऑन अ मैग्नेट which brings a magnet Sn to mean position is torque is given by the basic formula, as we know that it is mb sin theta if it is kept at theta angle with the magnetic field. So the formula is this, but here as we know that tau, instead of a m we are using mu, so the formula becomes mu b sin theta. Remember, mu b sin theta. Okay, mu b sin theta. But as you can see here in the fourth point, since theta is in anti-clockwise, as I have told you in the diagram, anti-clockwise direction है ना, and torque is in clockwise. Therefore the tau will be equals to minus mu b sin theta. The word minus will come because दोनों लेफ्ट और राइट साइड की चीज़ें वो एक दूसरे के अपोजिट हैं. रिमेंबर, थीटा और टॉर्क ये एक दूसरे के अपोजिट है, इस वजह से यहाँ पे ये फॉर्मूला आएगा. दिस इज इक्वेशन 1. नाउ वी कैन प्रोसीड फर्दर. हम आगे की तरफ अगर मूव करें तो हम ये देखेंगे
कि थीटा जो है, क्योंकि डिफ्लेक्शन बहुत ही स्मॉल एंगल से हुआ, सो सिंस थीटा इज वेरी स्मॉल, एक्चुअली आई वुड हैव टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो कि डिफ्लेक्टेड जो वर्ड यहाँ पे ना, डिफ्लेक्टेड थ्रू स्मॉल एंगल, डिफ्लेक्टेड थ्रू स्मॉल एंगल थीटा, स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्शंस किया है. ओके, सो ये बहुत ही स्मॉलर है थीटा. इफ द थीटा इज वेरी स्मॉलर, इट मीन्स योर sin theta will be approximately equal to theta. So as a result of that, the torque is given by minus mu b into theta, minus mu b into theta. ठीक है ना, ये होगा टॉर्क का फॉर्मूला. टॉर्क का फॉर्मूला जो होगा इट विल बी माइनस म्यू बी इंटू थीटा. ओके, अब आप समझिए, वी गॉट द टॉर्क. टॉर्क हमको आ चुका है और आप सभी को मालूम है टॉर्क, एक्चुअली बेसिक फॉर्मूला टॉर्क का क्या होता है कि टॉर्क इजिकल्स टू क्या होता है, आई अल्फा, है ना. तो इसको कंपैरिजन अगर करेंगे बाय इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, तो आपको पता चलेगा दैट आई अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस म्यू बी इंटू थीटा, where alpha is minus mu b upon I into theta. Remember this, okay, where आप देखेंगे म्यू बी और आई, ये तीनों के तीनों क्या हैं, कांस्टेंट है. इसका मतलब यही हुआ कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा है, एंड हैंस मोशन जो है, क्योंकि ये प्रूफ कर दिया हमने कि टॉर्क इज माइनस थीटा, टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा, हैंस द मोशन ऑफ ए मैग्नेट इज एंगुलर एसएचएम. एंगुलर एसएचएम होगा. सो यू कैन से मोशन ऑफ ए मैग्नेट, मैं एक पूरा स्टेटमेंट लिख देता हूँ, मोशन ऑफ ए मैग्नेट इन यूनिफॉर्म magnetic field is angular SHM. वो एक एंगुलर एसएचएम होगा, ये हमने प्रूफ कर दिया. ओके, सो वी हैव प्रूफ टिल हियर. इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट जो था कि टाइम पीरियड निकालना है आपको. टाइम पीरियड, ये क्वेश्चन है ना कि व्हाट विल बी द टाइम पीरियड. सो लेट अस कैलकुलेट द टाइम पीरियड. लेट अस कैलकुलेट द टाइम पीरियड. हम टाइम पीरियड देखते हैं कि इसकी टाइम पीरियड क्या होगी. हाउ टू कैलकुलेट द टाइम पीरियड. तो बेसिक फॉर्मूला फॉर ए टाइम पीरियड, एज यू ऑल नो दैट टाउ इज इक्वल्स टू, सभी को पता है कि बेसिक फॉर्मूला जो टाइम पीरियड का होता है, t इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय ओमेगा. ओके, t इज इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई बाय ओमेगा. एंड फ्रॉम हियर as we all know that अल्फ़ा जो आया है, इट इज़ अल्फ़ा जो आया है, अगर हम कंपैरिजन करें इसको अल्फ़ा को माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा से, तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू क्या आएगी, ओमेगा विल बी म्यू बी अपॉन आई. ये वैल्यूज अंडर रूट, अंडर रूट ऑफ म्यू बी अपॉन आई. This value we can substitute here. So I am writing here that since tau is equals to minus mu b upon I into theta आया है, okay, and here
सो सिंस टॉर्क इज इक्वल टू टाउ इज इक्वल्स टू माइनस म्यू बी अपॉन आई, ये फॉर्मूला तो हमने लिख लिया है, ये फॉर्मूला जो है वो हमने ऊपर से निकाला, बट हमें पता है it's not tau, it's alpha actually, sorry, it's alpha is this, but as we know that alpha का basic formula माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा होता है। तो यहाँ से आपको मिलेगा, कंपैरिजन करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर जो है वो एक्चुअली आपको म्यू बी अपॉन आई मिलेगा। सो द ओमेगा विल बी अंडर रूट ऑफ म्यू बी अपॉन आई। ओके, तो ये वैल्यू जब हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, आप लोग ले जाके यहाँ पे रखेंगे, तो टाइम पीरियड विल बी हैविंग द फॉर्मूला t इज इक्वल्स टू 2 पाई, ओके, डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ म्यू बी अपॉन आई, which can be written as the t is equals to 2 pi under root of I upon mu multiplied by b. Okay, so this is the formula for a time period of oscillating magnet. तो ये आपका फॉर्मूला बना time period of oscillating magnet. So we can say this is a time period of oscillating magnet in uniform magnetic field. Remember, that's it. Okay, so this is how we have found the time period of time period of a magnet in uniform magnetic field, and this is the entire derivation which we all have covered it. Okay, तो ये आप लोग प्लीज़ कवर कर लीजिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट था अबाउट द एंगुलर एसएचएम, ये एंगुलर एसएचएम से रिलेटेड था। ओके, अब कई बार ऐसा होता है जो आप लोग इसके अंदर केसेस अराइज कर सकते हैं, वो केसेस जो हैं वो अराइज हो सकता है, और केसेस जो इस तरीके का है कि हो सकता है कि यहाँ पे केसेस जो हैं वो अराइज कर लेते हैं व्हेन टू मैग्नेट्स जिसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट μ1 है और μ2 है, ओके, आर केप्ट सच दैट इसमें छोटे छोटे दो सब केसेस बन सकते हैं, सच दैट एक केस हो सकता है कि like poles are together, and the B case can be possible that unlike poles are together. ठीक है, तो let's have a look first like and then unlike. Let's start with the like and unlike. So when I'm starting with the like poles, so when like poles are together, तो resultant magnetic dipole moment capital M will be M1 plus M2, but here we are using mu must be equals to mu1 plus mu2 क्योंकि सिंबल हमने mu एज्यूम किया है। तो टाइम पीरियड जो आएगा t which is combined टाइम पीरियड जो होगा that will be 2 pi under root of I upon mu1 plus mu2 into b. Okay, this will be the combined, ये होगा combined time period. okay, लेकिन दूसरा पार्ट ये है कि जब वो अनलाइक पोल्स अगर होते हैं, अनलाइक पोल्स आर टुगेदर,
जब अनलाइक पोल्स टुगेदर होंगे तो उनकी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट अपोजिट डायरेक्शन में चली जाएंगी। तो m जो होगा इट विल बी m1 माइनस m2 मॉड में, बिकॉज वी डोंट नो विच वन इज ग्रेटर, हेंस वी कैन से द म्यू विल बी इक्वल्स टू म्यू1 माइनस म्यू2। एज्यूम कर लेते हैं कि म्यू1 इज ग्रेटर देन म्यू2 ऐसे करके। ओके, तो फाइनली यू विल गेट T combined and that will be equals to 2 pi under root of I divided by mu1 minus mu2 into B. This will be the formula. Okay, these are the cases which are discussed with you. Okay students, so this was something about a angular SHM and this is the end of your angular SHM part. I hope so आप लोगों को समझ में आया होगा। प्लीज़ आप मुझे सजेस्ट कीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच।